Hello everyone, today we will be doing the analysis of a three-hinge semicircular arch which is subjected to a point load at the ground. So first of all let us draw this three-hinge arch. This is a semicircular arch, okay? This is the ground point and here there is one point load acting, that is P. So if it is a semicircular arch, then the rise will be the radius of the circle, and this distance will be r and this will be r, as this point will be a and this point will be p. Now after making the three-hinge arch, first of all you need to calculate the unknowns. The steps are same as we have analyzed the previous structures, which is three-hinge arch subjected to UDL, subjected to which is a parabolic arch, or it is a semicircular arch. First step is you have to find out the unknowns. So for that, this is a hinge support. So here you know that it is having two unknown reaction. One is vertical, one is horizontal. Okay. So ये भी क्या है, B पॉइंट पे भी हिंज पॉइंट है, तो यहाँ पे भी दो अननोन रिएक्शन होंगे, दैट इज VB एंड HB. अब अगर आपको दोनों पॉइंट्स पे अननोन रिएक्शंस पता है तो आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्विलिब्रियम सेज summation of all the forces in x direction is 0, and let us assume that you are following a Cartesian system. This is x direction and this is a y direction. So the forces in x direction, if you are taking the forces which are going towards right hand side as positive and that are going towards left hand side as negative. So HA is going towards right hand side, so equation will be HA minus HB equal to 0, because there is no other force acting on that arch. So HA equal to HB. So this is the first equation you have arrived with. Now second equilibrium equation says that summation of all the forces in y direction should be 0. And if you are taking upward going forces as positive, then downward force will be negative. So you have to see that which forces are going upward. So HA, VA is going upward and VB is going upward and P is going downwards. So equation will be VA plus VB minus P equal to 0, because there is no other forces. So equation will be VA plus VB equal to P. So this is the second equation which is being drawn from this analysis. Now let us make the other equation that says the moment at summation of the moment at A support is 0, or you can make the moment at B be 0. So let us make an equation at A. So you have to apply the hand at A point. यहाँ पर आप अपना हाथ रखेंगे और जितनी भी रिमेनिंग फोर्सेस दिख रही हैं उनसे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करें. सो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग HB कोई पार्ट नहीं लेगा, बिकॉज A तक हमको मोमेंट निकालना है A पर. सो HB के लिए कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं है, सो HB विल नॉट टेक पार्ट. बाकी फोर्सेस के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो they will be taking part. So equation will be VB into the perpendicular distance till A is R plus R is 2R. Okay. Now this is producing, let us take an anti-clockwise force as positive and clockwise will be negative. So VB plus 2R into 2R is producing an anti-clockwise moment. So we have taken it positive, and other load, that is concentrated load B, which will be producing a clockwise moment, that is P into, and the perpendicular distance for P is R, and there is no other force which will be taking part in this moment equation. So summation of all the forces moment is 0. So from here you will get the VB value as P R upon 2R. RR get cancels out, so P by 2 is the unknown VB.
you have the value of VB. Now apply this in second equation and you will get the value of VA as P by 2. So now you have all the unknown values VA, VB. Now you have to calculate the unknown value, that is HA and HB. For that you have the additional equation in 3-hinge R that says that moment at C is equal to 0. So let us make an equation at moment at C 0 either by left hand side or right hand side. So I am making an equation from right hand side, then equation will be VB into the perpendicular distances R as we are going till C. So for VB the perpendicular distance is C, at C is R. So VB into R, it is producing an what type of moment? Anti-clockwise. If I am taking anti-clockwise positive, then clockwise will be negative. Now HA is taking part, that is producing a clockwise moment, HB, sorry. So HB into the perpendicular distance for that is capital R. ओके देखिए यहाँ पे ये HB है डायरेक्शन, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा C के लिए, दिस इज R. वैसे ही VB के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारे पास ये वाला R. VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, HB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और कोई फोर्स है यहाँ पर एज C पे हमको जाना है तो कोई और फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0. HB की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू R कैंसिल आउट हो जाएगा, VB कितना हमारा VB के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू P बाय 2. सो HB इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पे V बाय 2. ओके, सो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमने निकाल दिया है, वर्टिकल रिएक्शंस भी निकाल दिए हैं. अब हमको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल या एनालिसिस में किया था, उसमें हमने क्या किया था, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ सेक्शन एट x6 पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A. यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन कट किया. अब जैसे ही हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया, इस सेक्शन पे हमारे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाली, उस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया dmx अपॉन d थीटा के रिस्पेक्ट, दैट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक, अब हमको यहाँ पे सिमिलरली ऐसी कंडीशन बनाने के लिए पहले एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, दैट विल बी सेमी सर्कुलर आर्च. ओके, ये हिंज, ये भी हिंज, यहाँ पर सी क्राउन है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लोड है, x डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से आपका x हो गया, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आपका कैपिटल R है, और ये डिस्टेंस भी R है, और ये डिस्टेंस भी आपका कैपिटल R, एज इट इज अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट पे हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी, ये R हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा, दैट इज y, और ये एंगल हो जाएगा थीटा. तो हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया था, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r. सो ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू r माइनस एक्स. x की वैल्यू हो जाएगी r माइनस r cos थीटा, r कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा. तो x की वैल्यू ये आ गई. वैसे ही y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y इज इक्वल टू, y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r. सो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा. अब दोनों अननोन्स की वैल्यू निकाल ली हमने विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस ऑफ द सर्कल के अकॉर्डिंग हमने ये अननोन्स निकाल लिए हैं. अभी निकाल लिया तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट x विल बी, आप बताइए क्या होगी, एक्सेस पे निकालनी है तो यहाँ पे कितने अननोन्स है, एक तो ये होगा,
दैट इज वी ए, और एक ये होगा एच ए, और कोई लोडिंग नहीं है। सो वी ए क्या है, डब्ल्यू ओ पी बाई टू, यस पी बाई टू है। तो इसको लिख देते हैं हम पी बाई टू, दैट इज वी ए इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स माइनस एच ए इंटू, अब एच ए की वैल्यू कितनी है, एच ए की वैल्यू भी है आपकी पी बाय इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई। सो ये हो जाएगा पी बाय टू, एक्स है हमारा आर वन माइनस कॉस थीटा माइनस पी बाय टू वाई, दैट इज आर साइन थीटा। अब आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आप सिंपली आप इसको पुट करें और वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पी बाई टू आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, पी बाई टू और आर आपका कॉमन हो गया है, यहाँ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसको, ये आपके आ गया है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट एक्स पॉइंट। अब आपने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाल लिया एट एक्स पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, डेल एम एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज डब्ल्यू आर, ओ सॉरी वी आर टेकिंग पी है, पी आर अपॉन टू, वन का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan theta equal to 1 and theta will be equal to 45 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, मतलब जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा दैट इज एट 45 डिग्री एंगल। मतलब जब ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कहाँ पे है, सी पे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0। तो इस तरह से कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा इसका। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे निकालेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम विल बी, ये वैल्यू आप फॉर्मूला है दैट इज पी आर अपॉन टू 1 माइनस कॉस 45, ओके, माइनस साइन 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रखिए आप, इसमें वैल्यू रखेंगे आप तो ये आ जाएगा पी बाय टू आर, 1 माइनस कॉस 45 इज 1 बाय रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू। तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू आर बाई टू, डब्ल्यू नहीं है पे, सॉरी ये पी है, सो पी आर बाई टू एंड दिस विल बी रूट टू माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस। So this is the maximum bending moment of the semicircular arch which is subjected to point load at the ground. So इस तरह से आप bending moment की values calculate कर सकते हैं of different arches. So I hope सारे concept clear हैं. Now I will be sending you an assignment based on the 3 hinge arch. So you need to solve that assignment. Okay. Till then, thank you very much.